मुंह बोलता है। Amen. Amen. You know, we have wonderful. Before I go to the message, और संदेश शुरू करने से पहले you know, 1 Peter 3:10-11 says, 1 पत्रस 3:10 और 11 में लिखा "For है he that will love life and see good days." कि जो चाहता है कि मैं जीवन से प्यार करूं और आगे अच्छे दिन देखूं, God wants us to see good days. परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में अच्छे दिन देखें। Hello. Whatever the devil may say or do, चाहे शैतान कुछ भी कहे या करे, don't give the day for the devil. ये दिन को शैतान के हाथों में मत दीजिए। Amen. Amen. Take that day for the Lord. और ये दिन प्रभु के लिए ले लीजिए। Amen. Amen. Every day is the Lord's day. और हर दिन प्रभु का दिन है, Every day is the victor's day. हर दिन विजय का दिन It's है, the church day. और हर दिन कलीसिया का दिन है, Successful day. सफलता का दिन है, More than conqueror day. जयवन से बढ़कर वाला दिन है। Amen. Amen. Think about that. और इस तरह से सोचिए, You make the day. आप दिन को अच्छा बनाते Don't let the हैं, devil make the day for you. शैतान को आपके दिन को बनाने मत दीजिए। Hello? Amen. By faith, take it for God. और विश्वास से इस दिन को प्रभु के लिए ले Take it for the लीजिए, kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए ले लीजिए, Live that life. और ऐसा जीवन The जिए glorious, the successful life. जो महिमा रूपी सफलता that भरा God जीवन wants us to है, live. जो परमेश्वर चाहता है हम जिए। The church is the most powerful entity in the हम universe. जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में कलीसिया बहुत ही सामर्थशाली है। Amen. Amen. God wants you to live the bold life. परमेश्वर चाहता है आप धाड़स वाला जीवन The जिए, church is the testimony of who Jesus is. और कलीसिया मसीह की गवाही है। The church is the testimony that Jesus is a victor. और कलीसिया ये गवाही देती है कि मसीह विजेता है, Because we are born with the resurrection life. क्योंकि आपका जन्म पुनरुत्थान वाले जीवन That से हुआ faced है, death and conquered it. और जिसने मौत का सामना किया और उस पर जय That पाई, faced Satan and defeated it. जिसने शैतान का सामना किया और उसे हरा दिया। Amen. Amen. That came against the curse and brought blessing. जो श्राप के विरोध में आया और हमारे लिए आशीर्वाद And solved your लाया, sin problem. और आपके पाप की परेशानी Your को दूर curse कर problem. दिया, आपके श्राप को दूर किया। Let me tell you, मैं आपसे कहना there is चाहता no हूँ, record of your bad in God's book. आपके बुरे कामों का, आपके पापों का लेखा अब परमेश्वर की किताब में नहीं है। Amen. That is Amen. not the way most Christians see. और इस तरह से बहुत से मसीह लोग नहीं देखते हैं, Because they don't know the right word. क्योंकि वो प्रभु के वचन को नहीं जानते। Amen. There are all good things about you. और आपके लिए सब अच्छी बातें लिखी गई हैं। While I was driving the car, और जब मैं गाड़ी चला कर and I आ was रहा telling था, my wife, और मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, I was telling her, you know, I was thinking about my childhood days. और मैं अपने बचपन के दिनों के बारे में सोच And I रहा was था, telling her, और मैं अपनी पत्नी से you कह रहा था know, I wish I could see my childhood days. कि काश मैं अब अपने बचपन के दिनों को देख You पाता। know, we cannot see it now, अब हम नहीं देख सकते हैं, but in heaven we can. पर स्वर्ग में जाकर हम अपने बचपन के दिनों को देख सकेंगे। Amen. Amen. Not the bad days, बुरे दिन नहीं, but the good days. पर अच्छे दिन। No bad things ever enter heaven. स्वर्ग में कोई बुरी बात ने अब तक प्रवेश नहीं किया Amen. है। Amen. Your remembrance will be of good. आपकी जो याददाश्त होगी वो अच्छी बातों को Because लेकर heaven is होगी, good. क्योंकि स्वर्ग The अच्छा है, environment is good. वहाँ का माहौल अच्छा God है, is good. परमेश्वर अच्छा You है। will never think bad about yourself or others. और स्वर्ग में जाकर आप खुद के बारे में या किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, You'll only think about good days. आप केवल अच्छे दिनों के बारे में The सोचेंगे, remembrance of good days, अच्छे दिनों की याद रखेंगे, not the remembrance of bad days. बुरे दिनों की याद आपको नहीं आएगी। Amen. Amen. Even if God wants to show the people in heaven about you on earth, He doesn't show bad days. He shows good days about you. और यदि अब भी परमेश्वर स्वर्ग के लोगों को हमारे जीवन के बारे में दिखाना चाहता है, तो हमारे बुरे दिनों को नहीं दिखाता या बुरी बातों को नहीं दिखाता, God is a पर good हमारी God. अच्छाई को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर भला है। God is a good God. हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। Many don't know this true and the living God because the wrong message they are hearing. बहुत से लोग इस अच्छे और सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो गलत संदेश सुन रहे If you हैं। know how good He is, यदि आप जान ले कि परमेश्वर कितना भला है, you'll live a happy life and successful life. तो आप खुशहाल जीवन जिएंगे, सफलता भरा जीवन जिएंगे, You'll never be sad. आप कभी दुखी नहीं होंगे। They're not showing earth on earth, but heaven on earth. हम धरती पर रहकर धरती वाला जीवन नहीं दिखा रहे हैं, पर There is- धरती पर रहकर हम स्वर्ग को दिखा रहे There is हैं, fun in heaven. और स्वर्ग में मजा है। Receive that fun in और Jesus' name. उस मजे को, उस आनंद को स्वीकारिए यीशु के नाम There's a में। great blessing in being joyful. और आनंदित रहने में बड़ा आशीर्वाद One day है। I'll teach you. मैं इसके बारे में आपको एक दिन सिखाऊंगा। The joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद हमारी What ताकत does it है। mean? इसका मतलब क्या है? If you are joyful, you are strong. यदि आप आनंदित हैं प्रभु में, तो फिर आप ताकतवर हैं। Anything that comes against you, फिर चाहे आपके विरोध में कोई भी चीज with क्यों ना आए, joy, you can put it away. आनंद से आप उस चीज को दूर कर सकते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. There's power in joy. और आनंद में ताकत है, There's no power in sadness. और
दुख में कोई शक्ति नहीं है, There's no power in crying. उदास होने में, रोने में शक्ति नहीं God है। doesn't want you to cry परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप रोएं and receive things. और रोकर चीजों को पाएं। God doesn't want us to beg. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भीख We have मांगे। given the legal authority in the name of हमें Jesus. कानूनी अधिकार दिया गया है यीशु के नाम That में, name doesn't need crying. और इस नाम का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर रोने की Don't जरूरत connect नहीं that है। name with begging. और उस नाम के सहारे गिड़गिड़ाइए मत, Don't connect that name with pleading. उस नाम के सहारे भीख That मंगवाएंगे। name is not a beggar's name, the King of Kings' name. और वो जो नाम है कोई भीख मांगने का नाम नहीं है, पर वो राजाओं के राजा का Hello, नाम है। Christians must stop crying. और मसीहों को रोना बंद करना Mostly of the चाहिए। pulpits, pastors and the translators are crying, और हम देखते हैं मंच में जो पास्टर या ट्रांसलेटर बात करते हैं वो रो रो के बात करते pleading हैं, and begging God. वो परमेश्वर के आगे भीख मांगते हैं, Oh, Prabhu, गिड़गिड़ाते हैं। daya kara, Prabhu, daya kara. You have a name. आपके पास एक नाम है, This name is above every और name. ऐसा नाम जो हर नाम से In the ऊपर name है। of Jesus, every knee shall और bow. बाइबल कहती है कि यीशु के नाम के आगे हर Every घुटना tongue टिकेगा confess और हर जबान कबूल That Jesus करेगी is Lord. कि यीशु ही प्रभु He है, is the Lord and Master. और वही प्रभु है, वही स्वामी You है। have that name आपके पास वो नाम given है legally to you. और वो कानूनी तौर से आपको Use दिया गया it. है, उसका इस्तेमाल Don't कीजिए। cry. रोइए मत, Don't add that crying with that name of authority. उस नाम से रोने को मत जोड़िए, आपके पास अधिकार I know है। many Christians will be offended because of these messages. मैं जानता हूँ ऐसे संदेश सुनकर बहुत से मसीह लोग Because नाराज they have been होंगे, hearing of crying and crying and crying and crying and pleading and begging. क्योंकि अभी तक वो यही संदेश सुन रहे हैं कि हमें रोना है, गिड़गिड़ाना है, भीख मांगना है If you प्रभु के need नाम to से। beg, why do you need that name? यदि आपको फिर मांगना ही है तो फिर नाम की क्या जरूरत है? Amen. Amen. Why do you need that name? आपको क्यों यीशु के नाम की जरूरत है? Even the beggars get it. और भिखारियों को भी यूं ही मिल जाता है। Amen. Amen. You plead, you get it. वो मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा, Out of pity. और तरस खाकर लोग दे देते हैं। Not because you have a legal right. इसलिए नहीं कि आपके पास वो कानूनी हक But है, God has given us the legal right. पर परमेश्वर ने हमें वो कानूनी हक दिया In है। my name, go. मेरे नाम में जाओ, In my name, do this. मेरे नाम में ये करो, In my name, do that. मेरे नाम में वो काम करो। Amen. Amen. You have been given authority. आपको वो अधिकार दिया गया Authority है, people don't speak like that. और अधिकार वाले लोग भीख मांग के Authority गिड़गिड़ाते people नहीं don't हैं। preach like that. अधिकार वाले लोग यूं प्रचार नहीं Authority people करते। don't think like that. अधिकार वाले लोग की सोच You ऐसी have to नहीं renew your होती। mind. जरूरी है कि आप अपने मन को You need नया to change the करें, old order जरूरी है कि पुरानी बातों को आप बदल and come to the दें new one. और नई बातों की ओर आएं, Change that old order of और living. पुराने जीने के ढंग को छोड़ Change दीजिए that old order of knowledge. और पुराने ज्ञान को छोड़ दीजिए, law. जो व्यवस्था वाला ज्ञान Many है। churches, they preach law. बहुत सी कलीसिया अब भी व्यवस्था That's का an प्रचार old करती है। order. ये तो पुराना नियम That है is passed away. और ये बातें बीत चुकी We है। have the new order. अब हमारे पास एक नया नियम Enter in the है new. और नई बातों में प्रवेश For we कीजिए, are the new creation. क्योंकि हम नई सृष्टि Why हैं। does God call you new? परमेश्वर क्यों कहता है कि आप नए बन That चुके means there हैं? was the old. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पुराना भी If था। any man be in Christ, यदि कोई मनुष्य he मसीह is में a है new creation. तो आप वो एक नई सृष्टि New है, creature. एक नया प्राणी है, The new order. एक नया व्यक्ति है, Enter into the new and live the new. और नई बातों में प्रवेश कीजिए और नया जीवन जिए। Come out of the old. पुरानी बातों से बाहर Don't निकलिए। hear such messages of ऐसे law. संदेश मत सुनिए जो व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। Amen. Amen. People think that, when they read the Bible, they say, oh, I have to obey it. और लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे अब इसका मुझे पालन करना है। Oh my, it's so difficult. तो ये कितना मुश्किल है। Who told you to obey it? किसने कहा कि वचन का पालन करना है? You live it. आप केवल वचन के हिसाब से It जिए, is showing you about the new life living, और यही वचन आपको दिखाता है कि नए जीने का ढंग क्या है। not the old life trying. पुराने जीवन जिसमें हमें कोशिश करनी है वो प्रभु का Hello? वचन नहीं बताता। Are you understanding? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? It will take time to understand if you were under the law for many years. यदि बहुत सालों से आप व्यवस्था में रहे हैं तो समझने में थोड़ा समय लगेगा। Amen. Amen. I know many were disturbed when, in the beginning, when I started to teach all this, even pastors who had come and said, many are not understanding. मैं जानता हूँ कि शुरुआत में जब मैंने कृपा का संदेश देना शुरू किया तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, इतना तक कि पास्टर लोगों को भी ये वचन समझ में नहीं They आया have been hearing, oh, if you don't forgive others, God won't forgive you. कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु हमें भी क्षमा नहीं करेगा। Change the order. और इस नियम को बदलिए। Amen. Amen. We forgive, not to be forgiven, because we have already been forgiven, so we forgive. हम इसलिए दूसरों को नहीं क्षमा करते हैं ताकि बदले में हमें क्षमा मिले, पर हम इसलिए दूसरों को क्षमा करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें पहले से ही क्षमा किया Oh, है। are you seeing that? क्या आप ये देख रहे Look हैं? at the new order. देखिए सब कुछ बदल गया है। You believe and live. केवल विश्वास कीजिए और इसके हिसाब से जिए। It's more powerful to live by the faith life. विश्वास वाला जीवन जीना बहुत सामर्थ्यशाली है, Because when you live by faith, क्योंकि जब आप विश्वास से you जीते connect yourself हैं to grace. तो आप अपने आप को कृपा से And जोड़ grace is लेते God's हैं, ability. और कृपा प्रभु की ताकत है, And He makes
makes it happen in your life और जो कुछ होता है प्रभु हमारे जीवन में करता without है, your effort. आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है. Amen. Are you Amen. seeing this? क्या आपको ये समझ में आ Faith रहा makes है? you a powerful person और विश्वास आपको सामर्थ्यशाली व्यक्ति because बनाता है, faith gets you connected to God. क्योंकि विश्वास आपको परमेश्वर से Hello. जोड़ लेता है. Faith Amen. gets you connected to God. विश्वास से आप प्रभु से जुड़ जाते And हैं grace is the provision. और कृपा वो प्रबंध है. When you get connected to grace, जब आप कृपा से जुड़ जाते by हैं faith, विश्वास के द्वारा, provision is open to you. तो सभी बातों की उपलब्धि आपके लिए होती है. Grace is God's provision, और कृपा परमेश्वर की उपलब्धि freely है given to those who believe. जो मुफ्त में उन लोगों को दिया गया है जो विश्वास करते हैं. Hello, are you seeing this? क्या आप ये देख रहे हैं? Get connected to the Word. और वचन से जुड़े रहिए. The Word is the source of life. और वचन ही जीवन का सूत्र है. Amen. Amen. Get connected. Never get disconnected to the Word. और कभी भी वचन से खुद को दूर मत रखिए. Don't ever say, I know this, I know that. कभी मत कहिए कि ये वचन मुझे पता है, वो वचन मुझे पता है, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है. You know it, but do you live it? आपको वचन तो पता है, पर क्या आप उस हिसाब से जी रहे हैं? Are you the doers? क्या आप वचन करने वाले हैं? Holy Spirit told me this. There are many ways the devil influences Christians. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि शैतान बहुत अलग अलग तरीकों से बस्तियों पर अपना प्रभाव डालता है. Recently, I heard, I understood, and Holy Spirit also led me to understand. और हाल ही में मैंने देखा है और पवित्र आत्मा ने मुझे No, समझाया I'm भी है not growing in this church. कि मैं इस कलीसिया में, बहुत से लोग सोचते हैं मैं इस कलीसिया में नहीं बढ़ रहा हूँ. The word has no problem. वचन में कोई परेशानी It's the नहीं है, seed. वो तो बीज है. Amen. Amen. The sower is not the problem. और जो बोने वाला है उसमें कोई कमी नहीं The है. receiver is the problem. जो पाने वाला है उसमें कमी होती है, उसमें Because परेशानी होती है. God speaks about the four hearts. क्योंकि परमेश्वर 4 तरह के हृदय के बारे में Out of the बोलता four है. hearts, only one kind of heart is successful. और 4 में से केवल एक ही तरह का मन है जो अच्छा फल लाता है. Rest all the three don't have good grounds. और बाकी के जो 3 हैं उनके पास अच्छी मिट्टी नहीं है. Some are taken away by cares of this world, और कुछ लोग हैं जो दुनिया की चिंताओं में बह Running जाते after the हैं world. और जो दुनिया की चीजों के पीछे thinking भागते about the हैं worldly things. और दुनिया की चीजों के बारे में सोचते हैं. It chokes the word. और यही बात प्रभु के वचन को खा लेती है. Amen. Amen. Because what you allow will be allowed. क्योंकि जिन बातों को आप अंदर आने देंगे वो आपके जीवन में होकर If your रहेंगी. door is open for good and bad, यदि आपका दरवाजा अच्छी और बुरी बातों के लिए then खुला the bad है destroys the good. तो फिर जो बुरी बातें अंदर आएंगी वो अच्छी बातों को खराब कर देंगी. It's your choice. ये चुनाव आपका You है. shut the door of bad, open the door to good. आप बुरी बातों के लिए दरवाजा बंद कीजिए, अच्छी बातों के लिए दरवाजा Then खोलिए. you protect the word and it तो grows. फिर आप प्रभु के वचन को सुरक्षित रखते हैं और उसी में फिर प्रभु का वचन And you बढ़ता bear जाता a है. rich harvest in your life. और फिर आपके जीवन में अच्छी फसल आएगी. Amen. Amen. Why I'm saying this? क्यों मैं ये बातें Not आपको to बता offend रहा हूँ? anyone. किसी को नाराज करने के But लिए you know, नहीं, believers are so shallow. पर विश्वासों की सोच इतनी छोटी है. वो मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, हाँ मैं भी नहीं बढ़ रहा हूँ. अरे, जो नहीं बढ़ रहा ना वो एक ग्रुप हो जाता है. मेरे को लगता है इधर नहीं दूसरा जगह बढ़ेंगे हम लोग. See, if you know at the spur of the moment, if you cannot answer, that means you don't have the word in your heart. जब ये सभी बातें हो रही हैं, जब उस पल में आप जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब आपके मन में कभी वचन था The ही first नहीं. thought that should come should be from the word. आपके मन में जो पहला विचार आना चाहिए, जरूरी है कि वो प्रभु के वचन से हो. Amen. Amen. Then you defeat anything that comes against you. और फिर प्रभु के वचन के विरोध में जो कुछ आएगा आप उसे हरा If सकते the हैं. first word is the world's word, पर यदि सबसे पहला विचार जो दुनिया or का विचार आता है or your self word, या आपके खुद के विचार आपके मन में you're आते हैं, defeating yourself तो फिर आप खुद को हरा देते and हैं you're being influenced by the devil. और फिर शैतान का प्रभाव आप पर आएगा. Amen. Amen. You're not fighting it. आप लड़ नहीं रहे हैं. See, we have to fight the good fight of faith. हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई You're लड़नी not है. fighting, but succumbing yourself. You're giving yourself to आप the लड़- negatives of the word. जो नाकारती बातें जब आपके विरोध में उठती हैं, आप लड़ते नहीं हैं, पर उन बातों के हवाले आप खुद को छोड़ देते हैं. Amen. Amen. That's why I'm telling you. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, So that you fight the good fight of faith means you fight by the word. मैं इसलिए वचन आपको बता रहा हूँ, जब ऐसे हालात आपके विरोध में आए तो आप विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ें. Never disconnect yourself from the word. कभी भी खुद को वचन से अलग मत कीजिए. The word is your source. प्रभु का वचन ही आपका The स्तोत्र word है. is your life. प्रभु का वचन ही आपका जीवन Didn't है. Jesus say, क्या यीशु ने नहीं My कहा words, they are spirit and लाइफ life. कि मेरे जो वचन है वो आत्मा है और जीवन है. Amen. Amen.
never disconnect yourself from कभी the भी word. वचन से खुद को अलग मत कीजिए Never disconnect yourself from the church, और कभी भी खुद को कलीसिया से अलग मत from, कीजिए, especially from the grace church. खास तौर से ऐसी कलीसिया जो कृपा You know, में बनी the है। devil is making rounds by telling, oh, you're not growing, leave. और शैतान बहुत सारे विचार आपके मन में डालता है कि तुम इस कलीसिया में बढ़ नहीं रहे हो तो अच्छा है ये कलीसिया छोड़ दो। You know, when people are hurt, जब लोग नाराज हो जाते हैं then they see everything as to destroy. तो फिर जो भी उन्हें दिखता है उन्हें लगता है कि ये गलती है, वो बर्बाद करना चाहते They just हैं, want to destroy वो सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं to protect self. ताकि खुद को वो सुरक्षित रख सके, खुद को साबित कर सके। We need to be very careful. पर आपको बहुत सावधान रहना You चाहिए। know, if you walk by faith, you'll never murmur and complain. यदि आप विश्वास से चल रहे हैं तो आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, शिकायत नहीं Because करेंगे, murmuring, complaining and grumbling is not of faith. क्योंकि शिकायत करना, कुड़कुड़ाना ये विश्वास की बातें नहीं हैं। It's of the old man और ये तो पुराने मनुष्य का स्वभाव है, living by the sense. जहाँ पे हम इंद्रियों के ज्ञान के हिसाब से चलते हैं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर क्या गुस्सा आ गया मेरे? See, you're not talking by faith, you're talking by emotions. आप विश्वास की भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप भावनाओं के हिसाब से बातें कर That's why the रहे devil हैं। sees that you're hurt. इसीलिए शैतान हमेशा ध्यान देगा कि किसी न किसी छोटी बात से आप नाराज हो That you जाएं, stop walking by faith and Ta- walk by sensual knowledge. ताकि आप विश्वास से चलना बंद करें और अपने इंद्रियों के ज्ञान के हिसाब से चलें। Amen. Amen. Faith walking is different. और विश्वास में चलना बहुत अलग है। Even people offend you. जब लोग आपको नाराज भी You करते forgive. हैं तो आप उन्हें क्षमा Whether you करते like it हैं, or not. चाहे आपको पसंद आए या ना आए। Hello, that is faith. यही तो विश्वास है। Even my feeling doesn't accept it, but I walk by faith and I forgive. चाहे मैं महसूस करूं Look at या ना this. करूं, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, पर फिर भी मैं क्षमा करूंगा। मुझे मालूम है मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसको क्षमा करने के लिए, क्योंकि उसने मुझे मेरा बहुत नुकसान किया, मगर मैं विश्वास से चलने वाला हूँ, मैं विश्वास से उसको क्षमा कर देता हूँ, whether I feel it or not, whether चाहे I मुझे feel good or अच्छा, not. चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। See, that is, you know, many didn't understand what is walking by faith. और बहुत से लोग को अब तक यही नहीं समझ में आया कि विश्वास में चलने का मतलब क्या है। Many of us says, you must walk by faith. Amen. जब भी हम कहते हैं कि विश्वास से हमें चलना है तो सभी लोग कहते हैं आमेन, Because they have knowledge, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो है but not understanding. पर उसका समझ उन्हें अब तक नहीं मिला है They have not been doing. और वो ऐसा कर भी नहीं रहे When हैं। understanding comes, you won't do it. जब तक आपको वो वचन की समझ नहीं मिलती है तब तक वो आप कर भी नहीं पाएंगे। Hello, are you understanding this? क्या अब आपको समझ में आ रहा है? So look at this. for he that will love life and see good days, तो यहाँ पे लिखा है कि जो जीवन से प्यार करता है और अच्छे दिन देखना चाहता है let him refrain his tongue from speaking evil. तो वो अपनी जबान को बुरी बातें बोलने से रोके। You know, the tongue. I have written a big message on tongue, but you know, the time is so short, we cannot give everything. और जीभ को लेकर मैंने बहुत ही बड़ा संदेश लिखा है, पर समय इतना थोड़ा है कि मैं पूरा संदेश नहीं दे पाया। They speak no guile, कि they वो speak बु- no evil. वो बुरी बातें नहीं बोलते हैं, गंदी बातें नहीं बोलते हैं। If you want good things to happen in your life, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी बातें keep हो control of your tongue. तो अपनी जबान पे अपना वश From बनाए रखिए। evil बुरी and do बुरी good. बातें मत बोलिए, अच्छी बातें बोलिए। Turn away from evil. और जो भी बुरी बातें हैं उनसे दूर रहिए Search for peace और शांति की खोज में And रहिए work to maintain peace. और शांति बनाए रखिए। Say, at home, outside, everywhere. घर में बाहर सभी लोगों के साथ मेल मिलाप में no रहिए, violence. हिंसा मत कीजिए। Amen. Amen. Where there's strife at home, जहाँ पे घर में झगड़े होते हैं there's all kind of evil, the Bible तो says. बाइबल कहती है वहाँ पे हर तरह की बुराई पाई जाती है। Amen. Amen. When you have fights at home, जब घर में झगड़े होते हैं you know, when we say fight at home, मैं घर में तो किसको मारा नहीं अभी तक. मैं हाथ नहीं उठाया अभी तक. अच्छा ठीक है, बट शब्द से तुम झगड़ा किया है ना? हाँ. Is the same. वो एक तरह ही है, Is the same. या आप मुंह से झगड़ा करें या किसी को In मारें। fact, you can kill by words. इसके बजाय आप शब्दों से ज्यादा किसी की हत्या कर सकते हैं। हत्या कर सकते हैं हम लोग. हाथ से तो भी फटका मारा लगा इधर उधर, मगर जबान से तुम मार देगा पूरा. Doesn't the Bible say life and death are in the power of your tongue? क्या बाइबल नहीं कहती है कि जीवन और मृत्यु की शक्ति हमारी जबान के वश में है? Amen. Amen. Did you see that area? क्या आपने उस भाग में ध्यान दिया है? Did you take care of your tongue? क्या उस भाग में आपने अपनी जबान को अपने वश में You रखा already है? have power in you. आपके अंदर पहले से ही वो सामर्थ है। Before you speak, think. बोलने से पहले सोचिए। Be quick to Hear. hear, not speak. सुनने में तत्पर रहिए पर बोलने हम लोग में ये सब धीमे मालूम है. रहिए। Amen बोलता है. फिर भी जल्दी से सुनने से ज्यादा बोलते हैं हम लोग ज्यादा. Isn't it?
Huh? We are slow to Here. hear हम सुनते बहुत कम हैं and quick to speak. और झटपट बोल देते हैं, That's the old nature. That's और the old. ये पुराना स्वभाव है, छोड़ दीजिए, That's the old nature. वो पुराना स्वभाव है। Amen. Amen. Don't live by the old. और पुराने जीवन के हिसाब से मत जिए Be quick to hear. और सुनने में तत्पर और हम रहिए। लोग क्या बोला, बोल वापस, परत बोल, ऐकलं नाही मी. See. हाँ, तुमने सुना है बट फिर भी परत बोला. See, as speaking is bad, hearing is bad when it is contrary to God's word. और जहाँ वचन के विरोध में बात आती है, चाहे फिर वो बोलना हो या सुनना हो, दोनों ही बुरा है। I know we need to discipline our life. मैं जानता हूँ हमें अपने जीवन में शिस्त To लगाने live की the new जरूरत life है। requires discipline. नया जीवन जीने के लिए शिस्त की जरूरत पड़ती है। Amen. Amen. You have to choose to live. आपको चुनना है कि आप नया जीवन जिए, In heaven, you don't have to choose, you will live. और स्वर्ग में आपको चुनना नहीं है, आप खुद ब खुद वैसा जीवन But that will be जिएंगे, your life. क्योंकि वो आपका जीवन होगा। Amen. Amen. There will be no hindrance and temptations to live that good life. वहाँ पर कोई अड़चन नहीं होगा, कोई मोह माया नहीं होगा, पाप नहीं होगा ताकि आप किसी से लड़ें। But either अड़चन है, इसके लिए you have to choose not to live that और यहाँ life, पे- but live Christ life. यहाँ पे बहुत सारी बातें अड़चन लाती है हमारे विरोध में, इसलिए हमें चुनना पड़ता है कि हम मसीह का जीवन जिए और It's an पुराने जीवन को everyday छोड़ दें। fight ये हर रोज की लड़ाई है to live the good, ताकि हम अच्छा जीवन जिए। not fighting the devil. हम शैतान से नहीं लड़ रहे When we say हैं। fight, people, oh, my pine ka road pine ka. No, you are not fighting there. You are fighting to live the good life. आप शैतान से नहीं लड़ रहे हैं, पर आप इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आप अपने आप में अच्छा जीवन जिए। Amen. Amen. You're not fighting against sickness. You're fighting to live the healthy life. आप बीमारी से नहीं लड़ते हैं, पर आप इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आप अच्छी सेहत में बने Where रहें। is your focus is very important. आपका ध्यान कहाँ पर है, ये बात बहुत Your मायने focus रखती is है। on your new life. आपका ध्यान आपके नए जीवन पर होना Your focus चाहिए। is on your victory. आपका ध्यान आपकी विजय पर होना That will चाहिए, take you higher. और यही बात आपको ऊपर ले Your जाएगी। focus is not on the other side. आपका ध्यान दूसरी ओर नहीं है, Your focus is not on sickness. आपका ध्यान बीमारी पर Your नहीं focus is है, not on your defeat. आपका ध्यान आपकी हार की ओर नहीं Being a है victim. कि आप किसी का What the शिकार devil है, is doing. शैतान क्या कर On रहा the है, bad things. जो बुरी बातें वो कर रहा If है। your focus is there, you'll be drawn there. यदि आपका ध्यान हमेशा वहीं पर होता है तो आप वहीं पर Where खींचे your चले focus जाएंगे, is comes the power. और जहाँ पर आपका ध्यान है वहीं से आपको ताकत मिलती है। Amen. Amen. When your focus is on the right, जब आपका ध्यान सही बातों On पर the होता good. है, अच्छी बातों पर होता on the है, new nature, नए स्वभाव पर होता है, power comes from तो Christ. फिर मसीह से आपको ताकत मिलती Because है, that life is Christ life in क्योंकि you. वो जो जीवन आपके अंदर है वो मसीह का जीवन है। Amen. Amen. Where your focus is. कहाँ पे आपका ध्यान You know, है, Christians are more focused on the negatives. और मसीहों का ध्यान बहुत नकारात्मक बातों And पर they होता take the है, word of God in the wrong way. और फिर प्रभु का वचन वो गलत And they तरीके keep से लेते fighting हैं, and fighting and fighting. और फिर वो लगातार लड़ते रहते हैं, Who लड़ते told you to रहते fight the हैं। bad? किसने कहा कि बुराई से आप लड़ें? Fight because you have the good life and you want to live the good life. आप इसलिए लड़ें कि आपके अंदर अच्छा जीवन है और आप उस अच्छे जीवन में बने रहें। Focusing on the new life. नए जीवन पर ध्यान दीजिए। No, I remember the late Kenneth Hagin और मुझे याद है स्वर्गवासी केनेथ हेगन, always say, वो हमेशा कहते थे I'm born again. कि मेरा नया जन्म I'm हुआ a new है, creation. मैं नई सृष्टि हूँ। He was reminding वो himself हमेशा खुद को याद दिलाते थे, because automatically you'll be taken to the other side. क्योंकि खुद ब खुद आप वो बुरी ओर चले जाएंगे। Amen. Amen. The old nature. जो पुराना स्वभाव You है, have to remind yourself. आपको बार बार खुद को याद दिलाना होगा। Hello. Others won't do it. दूसरे लोग आपके लिए You are काम in नहीं the करेंगे, world. आप दुनिया में हैं। They will not remind you of who you are in Christ. They'll remind you of who you are in the old nature. दुनिया की बातें आपको नहीं याद दिलाएंगे कि आप मसीह में हैं, दुनिया की बातें आपको याद दिलाएंगे कि पुराना स्वभाव आपका In कैसा fact, they था। will not like you living the new nature. इसके बजाय जब आप नया स्वभाव में जिएंगे तो दुनिया को पसंद नहीं They आएगा। don't have it. They don't know it. They don't see it. उनके पास वो नया स्वभाव है नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं, उन्हें पता भी नहीं That's what है। the Bible says. इसलिए बाइबल You are कहती the है son of God. कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, But the world will not know it. पर दुनिया ये बात नहीं समझेगी। As the world did not know Jesus, जैसे दुनिया ने यीशु को नहीं जाना, they will not like it. उन्हें भी पसंद नहीं आया। Amen. Amen. They will not like it. उन्हें नहीं पसंद आएगा, And because they don't like it, you start living the old nature. और क्योंकि उन्हें आपका जीवन पसंद नहीं आता, इसलिए उनके लिए आप पुराना जीवन अरे जीते यार हैं। अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसा तुम बात तो वो बोलेगा चलो सिगरेट पी के दारू मैं यार अरे मेरे को अभी ये तुम अच्छा नहीं लग रहा है अरे पहला तुम कैसा था you know my relatives would say that और मेरे रिश्तेदार मुझसे कहते you know there was थे, a time we were living in the world एक समय था कि हम दुनिया और दुनिया की पद्धति our के हिसाब से relatives. जी रहे थे, अपने रिश्तेदारों go के for साथ। movies go and do this enjoy the world पिक्चर देखने जाओ, दुनिया में मजे लो, they used to also drink और वो भी दारू पीते थे। no I
I didn't like to drink, but मुझे sometimes. पीना अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी मैं कभी कभार पीता था। And when I came to the Lord, और जब मैं प्रभु में आया and they all came again. और वो सभी जब मुझसे Come मिलने on, आए, we'll go. I said, no, no. तो उन्होंने कहा चलो हम पार्टी करते हैं, मजे करते हैं। मैंने बोला नहीं, अरे यार, पहले जैसा नहीं है तुम। पहला कितना मजा आता था, अभी तुम वैसा नहीं है, बदल गया है। अच्छा है, बदल गया है, अच्छा के लिए बदल गया है, बुरा में तो नहीं बदल गया ना, but they won't like it. पर उन्हें ये बातें पसंद नहीं आएंगी। Amen. Amen। But if you want to compromise, पर यदि आप समझौता करना चाहते हैं, then you can go along with them. तो फिर आप अपने नए जीवन को छोड़ के उनके साथ चल To सकते please हैं, man, then God. ताकि परमेश्वर को छोड़ हम इंसान को खुश करें। If you confess me before men, बाइबल कहती है यदि तुम मनुष्य के आगे मेरी कबूली करोगे, what does it mean? उसका मतलब क्या है? This is the way God living, God way of living. और इसका मतलब है कि दुनिया में रहकर हम प्रभु के जीवन The को new जीते nature हैं, living. नए स्वभाव में जीते Christ हैं, living मसीह का जीवन Is जीते हैं। confessing men, Christ. और जब हम मसीह का जीवन जीते हैं, इसी का मतलब है कि हम लोगों के सामने यीशु की कबूली करते हैं। Amen. Amen। See, more than your words, आपके शब्दों से ज्यादा your living the Christ life is a witness to them. जब मसीह का जीवन आप जीते हैं, वो देखकर ही आप मसीह की गवाही उन्हें देते हैं। You can have words, but what about your living? हो सकता है आप अच्छे शब्द बोले, पर आपके जीने के बारे So the में Bible क्या? says, be doers of the word, not just hearers. इसलिए बाइबल कहती है कि वचन केवल सुनने वाले मत बनो, पर वचन करने वाले बनो। Amen. Amen। If you're speaking and your living is different, यदि आपका बोलना और आपके जीने का ढंग अलग है, then they won't change. तो फिर वो लोग आपको देखकर बदलेंगे नहीं। Only by living will they change. जब आपके जीवन को वो देखेंगे, तभी वो खुद को बदलेंगे। Amen. Amen। बहुत लोग अच्छा बात कर सकता है, मगर उसके मुताबिक नहीं रहते हैं। Amen. But we have that new life, पर हमारे अंदर वो नया स्वभाव है and we can live. और हम वो जी सकते हैं, It's God's ability in us. और ये परमेश्वर की योग्यता The हमारे nature अंदर of है। God comes with God's power. परमेश्वर का जब स्वभाव आता है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य भी हमें Like मिलती the है। natural life has given us power to live the natural life. जैसे नैसर्गिक जीवन ने हमें ताकत दी है कि हम ये नैसर्गिक जीवन जी सके। Amen. Amen। देखो हाथ उठाने को कितना इजी है, ऐसा तुम कोशिश करता क्या? नहीं. The natural life has power. और नैसर्गिक जीवन में वो शक्ति है। Amen. Amen। जैसे ऐसा हाथ उठा दिया, कितना भी वजन रहे दो, इजीली उठाते. Because the natural life which has power. क्योंकि नैसर्गिक जीवन सब कुछ आसान कर देता है कि आप नैसर्गिक जीवन जी तो कभी सके। सोच भी नहीं सकता, अरे बाप रे हाथ उठाने को, उठाओ क्या नको, नहीं, कभी भी, any time, with a split of a second. और पल भर में आप वो काम कर सकते हैं। Amen. Amen। Even you don't even think about it. आप सोचते भी नहीं है उसके बारे में। See, you're so used to natural power और नैसर्गिक जीवन या नैसर्गिक ताकत के इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत आसान हो because you're चुका born है, naturally. क्योंकि आपका जन्म नैसर्गिक तरीके से And you हुआ है, cannot doubt. और अब आप उस पर शक नहीं कर सकते। Amen. Amen। Things happen naturally. और खुद ब खुद चीजें हो जाती हैं, That's the way things should happen spiritually. और इसी तरीके से आत्मिक जगत में चीजें होनी If चाहिए। natural life can give you power, यदि नैसर्गिक जीवन आपको ताकत दे सकता है Naturally. नैसर्गिक बातें करने can't के लिए, spiritual life give you spiritual power? तो फिर आत्मिक जीवन आपको आत्मिक ताकत नहीं दे सकता। Amen. Amen। You have not understood that. आपको ये समझा ही नहीं है, So we fear इसलिए हम डरते हैं whether we can do it. कि हम कर सकते हैं या नहीं। But what did Paul say? पर पौलुस ने क्या I कहा can do all things. कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. Amen. I can do all मैं things. सब कुछ कर सकता हूँ। He was not talking naturally but spiritual. और वो नैसर्गिक बातों की बात नहीं कर रहा था, I पर can do आत्मिक काम की all बात कर रहा things था। through Christ. और वो कहता है कि मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। When you say through Christ, और जब आप कहते हैं कि मसीह के द्वारा, Christ's strength flows. इसका मतलब है कि मसीह की ताकत हमारे अंदर That's what बहती he है। said. वही तो उसने I can do कहा, all things through Christ who Strengthens me। strengthens me. कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे Look at सामर्थ this. देता है। In Christ you are strengthened. और मसीह में रहकर आपको वो सामर्थ मिलता You have है, power. आपके पास वो ताकत है। The spiritual life has power. आत्मिक जीवन में वो ताकत है। You forgot. आप भूल गए हैं, Your spiritual life has power. आपके आत्मिक जीवन में शक्ति है, Resurrection power. पुनरुत्थान वाली शक्ति। We are born again with the resurrection power. और आपका नया जो जन्म हुआ है वो पुनरुत्थान वाली शक्ति से हुआ है। It's not by doing. ये करने से नहीं हुआ है, It's not by behaving. आपके बर्ताव करने से It's नहीं not हुआ by है, struggling. ये संघर्ष करने से नहीं हुआ है, It's by believing. पर विश्वास करने से होता है। Amen. Amen। It's the faith life. ये विश्वास वाला जीवन है। What you see क्या आप देखते हैं is true. वो सच है।
that pleases God. और यही बात प्रभु को खुश करती है। Amen. Amen. When God says like this, जब परमेश्वर इस तरह से बोलता है and He says, I believe, और आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, even if your behavior doesn't line up, तो चाहे आपका बर्ताव उस हिसाब से क्यों ना हो, but God is pleased with our faith. पर आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर आपसे खुश होते हैं। Amen. Amen. But the devil has intervened and he made us focus on behavior. पर शैतान फिर दखल करता है और वो कहता है कि देखो तुम्हारा बर्ताव तो सही नहीं है। Suppose तुम्हारे को विश्वास है, हो जाएगा। Suddenly devil says, क्या हो जाएगा? कल क्या किया तूने? तेरा behavior कैसा था? Oh, बाबा, finished. Your faith goes down. फिर आपका विश्वास नीचे चला जाता है। हाँ प्रभु, दया करा प्रभु। मैं ना उपवास प्रार्थना करता था. See, you're trying to get it by works. और आप पाने की कोशिश करते हैं अपने कामों से, You cannot believe you're right. और फिर आप विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हम सही हैं। There is where Christians struggle. और वहीं पे बहुत से मसीह लोग संघर्ष करते हैं। You struggle. आप संघर्ष करते हैं। Christian life is not a struggling और life. मसीह जीवन संघर्ष करने वाला जीवन नहीं Faith है। life is not a struggling life. विश्वास वाला जीवन संघर्ष करने वाला जीवन Faith नहीं life है। is more than a conqueror life. और विश्वास वाला जीवन जैवन से बढ़कर वाला जीवन A है, victor's life. या विजेता वाला जीवन Because है। faith is of the Son of God. क्योंकि जो विश्वास है ये परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। Amen. Amen. Don't live with people who don't have the right knowledge of God's और word. ऐसे लोगों के साथ मत घूमिए जिनके पास प्रभु के वचन का सही ज्ञान नहीं Keep on है। hearing what they say जो वो बोल रहे हैं उनकी बातें मत सुनिए। and renew your mind to the old rather than the new. और जब आप ये बातें सुनते रहेंगे तो आपका मन पुरानी बातों में जाएगा और नई बातें निकल And जाएंगी। your heart becomes hard for the word of God. और फिर आपका मन जो है वचन के लिए कठोर हो जाता Because है, there are many kind of thistles and thorns that are growing in your soul. क्योंकि फिर आपके प्राणों में बहुत ऐसे कांटे हैं जो बढ़ते जाते हैं। Oh my, I didn't even start the message. मैंने संदेश शुरू भी नहीं किया। You know, sometimes Holy Spirit, not sometimes, I don't want to sometimes, always. और मैं नहीं कहना चाहूंगा कभी कभार, पर See, हमेशा I make पवित्र such आत्मा big messages, but I give none. हमेशा पवित्र आत्मा मुझे बड़े बड़े संदेश देता है पर मैं वो पूरा दे नहीं पाता हूँ। Maybe it is for my spiritual growth. हो सकता है कि ये संदेश मेरे लिए है ताकि मैं आत्मिक तरह से बढ़ूं। Amen. Amen. Be blessed. आशीर्वादित होइए। You are blessed. आप पहले से ही आशीर्वादित Be happy. हैं। खुश Be रहिए, joyful. आनंद में रहिए, Let faith work. विश्वास को काम करने दीजिए, It will overcome fear. और यही विश्वास आपके डर पे जय पाएगी। Amen. Amen. Believe. विश्वास You कीजिए। don't have to fear. आपको डरने of की जरूरत नहीं है, anything. किसी बात से मत डरिए। Pray, pray for the unbelievers. अविश्वासियों के लिए प्रार्थना But I'll कीजिए। tell you today, pray also for the believers. पर मैं आज ये भी आपसे कहूंगा कि विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना Yeah. कीजिए। मैं अनबिलीवर्स के लिए प्रेयर कर रहा था, विरुद्ध नहीं आने मांगता मंडली का, बट बाद में मालूम पड़ा कि अपना परिवार के ही लोग, चर्च के लोग ही अड़चन पहुंचाते। Look at this. Now I have to change my strategy and also pray for believers. और फिर अब मुझे अपनी प्रार्थना को बदलना पड़ेगा, विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना That they are करनी not पड़ेगी influenced by the devil. कि हमारे विश्वासों पर शैतान का प्रभाव ना आए। मैं ऐसा कभी नहीं किया, मैं अनबिलीवर के लिए प्रेयर कर रहा था। मैं बोला बिलीवर्स लोग तो फॉर द चर्च है। और मुझे लगा कि जो विश्वासु हैं वो कलीसिया के पक्ष में हैं, But- कलीसिया का साथ देंगे। But not all. You need to pray and bind the devil's influence even over the believers. पर सभी ऐसे लोग नहीं है, इसलिए जरूरी है कि हम विश्वासुओं के लिए भी प्रार्थना करें और शैतान के प्रभाव को बांधें। Amen. आमीन। Think about God's work. परमेश्वर के काम के बारे में हमारा सोचिए। नुकसान हो गया चलेगा, परंतु प्रभु का राज्य आगे बढ़ने का। आमीन, हालेलुया। Don't make yourself God bigger than God. और परमेश्वर से बढ़कर खुद को परमेश्वर मत बनाइए। There is a God that is bigger than you. और एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे बहुत बड़ा है, महान है। Amen. आमीन। हमारा नुकसान क्यों न हो, प्रभु का फायदा होना चाहिए, प्रभु का राज्य का फायदा होना चाहिए, और वो फायदा वो चर्च के द्वारा होता है। Amen. Amen. Because church is the expression of Christ on earth. क्योंकि धरती पर रहकर ये कलीसिया ही है जो मसीह को Where is प्रस्तुत करती Christ? है। मसीह कहाँ पर है? The church, कलीसिया में, the assembling of the church. जहाँ पे कलीसिया जमा You होती are the है। body of Christ, आप मसीह का शरीर the हैं। expression of Christ on earth. आप इस धरती में रह के मसीह को प्रस्तुत करते हैं। Apart from you is the world. और आपको छोड़कर जो बाकी सब कुछ है वो जगत है, वो दुनिया है। Amen. Amen. तुम जग के विरुद्ध हो या चर्च के विरुद्ध हो, सोचो। Never come against the church of the living God. कभी भी जीवित परमेश्वर के कलीस के विरोध में मत आइए। Amen. Amen. Protect the church. कलीसिया को सुरक्षित रखिए। Church is the body
of Christ. क्योंकि यही कलीसिया मसीह का शरीर है। Amen. Amen. Okay.